Assalamu alaikum. My name is Malik Najmul Siraj. In today's class, we are going to talk about basic building blocks of digital domain. हम लोग जो बुक फॉलो करें वो डॉक्टर शोबे खान की बुक है और उसको हम लोग चैप्टर नंबर 5 को आज डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि एडर्स हैं उनकी हम बात करेंगे और हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि आप लोग अपने पुराने कोर्सेज में पढ़ते आए हैं। बेसिक एडर्स पढ़ते आए हैं, उनको देखेंगे जो कि हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स हैं। देन वी मूव ऑन टू रिपल कैरी एंड देन कैरी लुका एड जो कि आपने देखा हुआ है थोड़ा बहुत, कैरी सेलेक्ट एडर, कंडीशन सम एडर, और फिर हम लोग आगे एडवांस एडर्स को डिस्कस कर रहे होंगे इस तरीके से। Okay, so let's move on and look into the basic adder, which is a half adder and a full adder. We know this is a half adder which takes 2 bit as an input and produce sum and a carry. Sum is the XOR of these two inputs A and B, whereas carry is the AND of these two inputs A and B. So this is the actually Verilog code of this half adder. We know that Verilog code starts with a keyword module, and then this is the name of module, which is a half adder, and then we actually define the input and output IOs of that module. In this case, it takes the 2 bit as an input and produces these 2 bits as an output. The first bit name is AI, second bit name is BI, first bit name is AI, second bit name is BI. The output is SI, which is sum, and C out, which is carry out. Output is the SI, which is sum, and C out, which is carry out. So we then can define those inputs on the basis of input and output, and we separate them using a keyword input. So we told the Verilog that these AI and BI are the inputs, and SI and C out are the outputs. So there are multiple ways to write the Verilog code. The one I am interested in right now is the 2 level of abstraction. One is the data flow modeling, and we will look into the behavior level of modeling. These are the 2 modeling that I am only interested in. So if we look into the data flow modeling starts with a keyword assign. This is the keyword which is only used in data flow modeling. And then we need to assign a value C out and SI. This is what we call as concatenation. So let me choose a pen. So this operator bracket यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये concatenate कर रहे हैं carry C out और sum को is equal to AI plus BI. So this operator is doing an addition of these single bit AI and BI and produce a sum SI and C out a carry. जो भी पहली बिट आएगी वो SI में चली जाएगी, जो भी अगली बिट आएगी वो C out में आ जाएगी. And this is how it works. So there is another level of modeling which we call as behavior level of modeling. If we are going to write a behavior level of code of this half header, this is how we can write a behavior level of a code. In behavior level of modeling, there are 2 keywords that are used. There are 2 blocks or 2 keywords. One is called always block. So this is called an always block. Okay. And then other block is called an initial block. इनिशियल ब्लॉक को हम लोग कभी भी सिंथेसाइजेबल कोड के अंदर यूज़ नहीं करते, वो हम लोग स्टिमुलस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज इनिशियल इज़ नॉट सिंथेसाइजेबल, वेयर एज इन केस ऑफ ऑलवेज ब्लॉक ऑलवेज इट इज़ अ सिंथेसाइजेबल ब्लॉक. सो द सिंटैक्स ऑफ ऑलवेज ब्लॉक इज़ ऑलवेज एंड देन वी नीड टू ऐट का सिंबल आ जाएगा एंड देन स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगी. जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये स्मॉल ब्रैकेट बेसिकली डिफाइन कर रही हैं सेंसिटिविटी लिस्ट ऑफ द ऑलवेज ब्लॉक. ठीक है, ऑलवेज ब्लॉक मेरे पास जो सेंसिटिव है वो AI के ऊपर सेंसिटिव है एंड BI के ऊपर सेंसिटिव है, तो मैंने वो सेंसिटिविटी लिस्ट डिफाइन कर दी. एंड देन आई राइट अ कीवर्ड बिगिन इफ देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स and we want to write multiple statements inside an always block, we need to write begin and end. These are again keywords. Whereas if there are not multiple statements, we can skip begin and end and work on this thing. So this statement is pretty much same as this statement is pretty much same as the statement used in case of assign, जहाँ पे हम लोगों ने डेटा फ्लो मॉडलिंग में इसको यूज़ किया था. ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका असाइन कीवर्ड होगा, इधर असाइन कीवर्ड नहीं होगा. पहली चेंज. दूसरी चेंज यहाँ पे ये आएगी
कि जो भी ऑलवेज ब्लॉक की लेफ्ट हैंड साइड होगी ये आपको लाजमी है एज अ रेज डिफाइन करना। हम आगे जाके इसको मज़ीद भी डिटेल में देख लेंगे और इसको हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है डिफरेंट और डिज़ाइंस के अंदर जो हम लोगों ने क्लास में पहले डिस्कस किए हुए हैं। सो हम लोग अब हर मॉड्यूल को पढ़ते जाएंगे और उनका हम लोग वेरिलॉग कोड देखते जाएंगे। If we combine, there's another which is called as a full adder. Full adder is an adder which takes 3 bit as an input, 3 bit input में आ रहे हैं, and produce 2 bit as an output, sum and a carry. So if both sum and a carry, if all the 3 inputs are 0, sum is 0, carry is 0. If all the 3 inputs are 1, sum is 1 and carry is 1. From there we can find out the equation of C and S and use them to get the equations and then draw a circuit diagram. This is the circuit diagram. This is the circuit diagram of a full adder which has a sum and a carry. So this is the circuit diagram using a gate level implementation and using equation. But there is another way of implementing that thing using the full adders, using the half adders that we already designed. I'm not going in detail how you are going to design that circuit, but this is that implementation in which you are using, this is a half adder module जिसको आप use कर रहे हैं। I don't know ये क्या लाइनें दोबारा पढ़ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। This is another half level module जो आप यूज़ कर रहे हैं। इन दो हाफ एडर को आप दो दफ़ा इंस्टेंशिएट कर रहे हैं in order to make a full adder, and then you are using an extra NOR gate in order to produce carry. So this is how it is. Now if we go into the implementation, there's another way of implementing this thing, and that implementation you can see that implementation is using multiplexer. You can implement a circuit using a multiplexer. If you look into the detail, आप लोगों ने ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर देखा हुआ है, सो मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं चाहूँगा, लेकिन लेट्स से हम लोग किसी एक को देखते हैं, विच इज़ लेट्स से सम को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर so what we can do is हम लोगों ने, this is the truth table of a full adder. It produced two output C and S. For each output you need to have a separate multiplexer. So this multiplexer is producing a sum and this multiplexer is producing a carry. For each output आप लोग को एक multiplexer चाहिए होगा। ये multiplexer implementation की methodology ये होती है। इसको हम लोगों ने divide कर दिया। If I'm using मैंने इसको two groups में divide कर दिया। और now if we look into this, अगर मैं ये पहला मल्टीप्लेक्सर देखता हूँ एंड दिस मल्टीप्लेक्सर इज़ फॉर सम, अगर मैं इस मल्टीप्लेक्सर को देखता हूँ तो ये मेरे पास मल्टीप्लेक्सर मुझे ये बता रहा है ये मल्टीप्लेक्सर मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास ये जो दो, अगर मैंने x और y यहाँ पे a b, इसको मैं कह रहा हूँ a है, ये b है, ये ci है। दिस इज़ माई a, this is B and this is my C, ठीक है। सो अगर मैं A और B को इसकी मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन के साथ दे रहा हूँ, तो जब भी मेरे पास मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन 0 होगी तो this part, if multiplexer select line is 0 1, so this part, if multiplexer select line is 1 0, so this part, and if multiplexer select line is 1 1, so this part. अगर मेरे पास मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन 0 0 है तो इसका मतलब है वट एवर इज दिस इनपुट इट गोज टू दिस आउटपुट, ठीक है। अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, इफ आई लुक इनटू दिस सम, तो सम की वैल्यू 0 भी हो रही है 1 भी हो रही है, लेकिन अगर मैं z को देखूं तो z की वैल्यू जब 0 हो रही है तो सम भी 0 है, z की वैल्यू 1 हो रही है तो सम भी 1 है। सो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मल्टीप्लेक्सर की इस इनपुट में जो मेरे पास तीसरी इनपुट है c विच इज़ z, अगर मैं उसको कनेक्ट कर दूँ तो इट इज़ ओके। तो जब भी मेरे पास 0 0 0 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगी, 0 0 1 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगी, सही है। सिमिलरली इफ वी मूव ऑन एंड लुक इनटू दिस थिंग, कि जब भी मेरे पास 0 1 आएगा, इफ व्हेन एवर इज 0 1, तो ये जो इनपुट है इधर एक 0 है इधर एक 1 है, जब भी मेरे पास 0 1 आएगा तो दिस इनपुट इज सिलेक्टेड। ये इनपुट में क्या आ रहा है, अगर मैं देखूं तो मैं इसको देख सकता हूँ कि मेरे पास आउटपुट मुझे क्या चाहिए, आउटपुट मुझे 1 भी चाहिए 0 भी चाहिए। 1 कब चाहिए, जब मेरे पास c की वैल्यू 0 है
और 0 कब चाहिए, जब c की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है c का इन्वर्ट है, तो मैं अगर c को इन्वर्ट करके इधर कनेक्ट कर दूँ तो मेरे पास ये ओके है। सो इफ इन मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट लाइन इज 1 0 1 0, जब ये होगा तो ये सिलेक्ट होगा। जब 1 0 होगा, again my output sum is either 1 or 0, it totally depends on my input c। ये मेरे पास 0 अगर होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 1 सॉरी ये 0 है तो ये 1 आ रहा है, ये 1 है तो ये 0 आ रहा है, इट मीन इन्वर्टेड। तो फिर आपने दोबारा नॉट गेट लगा दिया। सिमिलरली थर्ड को अगर हम देखें तो इट इज सेम एज द इनपुट c, तो आप इनपुट c को डायरेक्टली आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो विच इज़ 1 1 में। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास इस केस में जो C आउटपुट है, जब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 है तो C आउटपुट की वैल्यू 0 आ रही है, तो मैं इसको डायरेक्टली ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सम में ये सिनेरियो नहीं पेश आया था। दिस इज़ अनदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर जो आप लोगों ने डिश लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में भी देखी हुई इम्प्लीमेंटेशन होगी। सो इन ऑर्डर टू राइट अ वेरिलॉग कोड ऑफ a full adder, there are multiple ways to write a Verilog code. One is to use those equations जो कि हम लोगों ने पिछले equations निकाली हैं। ये this is ci, इसकी equation को और sum I की equation को मैं implement कर दूँ तो मैं उससे निकाल सकता हूँ। दूसरी implementation ये है कि मैं इस multiplexer को यूज़ करूँ, multiplexer के थ्रू मैंने जो ये circuit बनाया है इस circuit को implement करूँ। तो मैंने एक multiplexer बनाया होगा 4 to 1 का, I need to instantiate that multiplexer 2 times and connect my circuit in this form to get this job done. And other implementation is using a half adder module. हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास जो full adder है उस full adder के अंदर मेरे पास 2 half adder हैं। So what I can do is मैं इस full adder को अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो ये एक half adder है, एक ये half adder। इस half adder के अंदर मेरे पास ये 2 इनपुट्स आ रही हैं और ये 2 आउटपुट्स आ रही हैं। दीज आर दी टेम्प्रेरी आउटपुट्स जो कि इस हाफ एडर से आ रही हैं। ये इस हाफ एडर का सम है, ये इस हाफ एडर का कैरी है जिसको मैं यूज़ करूँगा फिर। तो इसका मतलब है कि मैं अगर इस मॉड्यूल को देखूँ जो कि ये फुल एडर है, इस फुल एडर के अंदर मेरे पास जो इनपुट्स आ रही हैं वो ये मेरे पास इनपुट्स हैं। सो इसका मतलब है कि मेरे पास एक इनपुट AI है, एक इनपुट BI है और एक इनपुट मेरे पास CI है। सो इसको अगर मैं देखूं और मेरे पास इसकी आउटपुट जो है वो एक SI है और एक मेरे पास CI+1 है जिसको मैं C आउट कह सकता हूँ। इसको मैं C in कह रहा हूँ, दिस इज C in और मेरे पास ये जो है ये बेसिकली मेरे पास C आउट है। सो दिस इज C आउट। तो अगर मैं देखूँ तो फुल एडर मॉड्यूल का कीवर्ड से स्टार्ट हुआ, नेम ऑफ द मॉड्यूल एंड देन आई डिफाइन द पोर्ट लिस्ट ऑफ द मॉड्यूल। AI, BI and C in are the inputs and SI and C out are the outputs. So I separated those inputs. I separated the ports using the keyword input and output as जो inputs हैं और outputs उनको separate करने के लिए। तो मैंने यूज़ किया input AI and BI, input C in and I define output SI and C out. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक वायर का कीवर्ड फर्दर यूज़ हुआ है। वायर, अच्छा हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने ये किया हुआ है कि बेसिकली ये जो आउटपुट आ रही है इस आउटपुट को भी तो कहीं स्टोर करना है ना। इस आउटपुट को भी मैं स्टोर कर रहा हूँ कि मेरे पास ये यहाँ पे डिफाइंड है एज एन SI ऑफ फुल एड हाफ एडर A। ठीक है, ये मेरे पास जो डिफाइंड है दिस इज़ माई PI इज़, अगर मैं इसके नीचे PI लिख देता हूँ, जो PI लिखा हुआ है वो ये है। PI और मेरे पास GI क्या है, दिस इज़ माई GI। ये मेरे पास GI है जो कि मेरे पास हाफ एडर का C आउट है। ये मेरे पास है C आउट ऑफ अ फुल एडर है जो कि ये R है और फिर इन दोनों का मुझे OR करना पड़ेगा। सो ये आपके पास वैल्यू आपके पास आ रही है जो कि C आउट की वैल्यू है। ओके, सो नाउ इफ़ वी लुक इनटू दिस थिंग, ये एक मेरे पास हाफ एडर का एक इंस्टेंस बना हुआ है, ये हाफ एडर का दूसरा इंस्टेंस बना हुआ है। अगर मैं इस हाफ एडर के इंस्टेंस को देखूं तो इस हाफ एडर के इंस्टेंस में मुझे पता है कि हाफ एडर में 2 इनपुट आ रही होंगी A और B और आउटपुट एक आ रहा होगा सम और एक आउटपुट कैरी आ रहा होगा।
ये दो इनपुट्स हैं, ये सम है और ये कैरी है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द हाफ एडर. दिस इज द हाफ एडर मॉड्यूल नेम, जो कि हम लोगों ने मॉड्यूल जब बनाया था उसका नाम हाफ एडर रखा हुआ था. दिस इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल इन दिस फुल एडर. हाफ एडर का इस वाले मॉड्यूल का नाम HA1 है. सो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास मॉड्यूल है इसको मैं नाम दे रहा हूँ इस फुल एडर के अंदर HA1, और इसको हम नाम दे रहे हैं HA2. ठीक है. सो मैंने HA1 में मैंने क्या, ये मैंने वही नेमिंग कन्वेंशन का वही ऑर्डर फॉलो किया जो कि मेरे पास जिस ऑर्डर में मैंने इंस्टेंशिएशन की हुई थी. एक ये काम हो सकता है कि मैं उसी ऑर्डर को यूज़ करूं, या दूसरा ये काम हो सकता है मैं डॉट कन्वेंशन को यूज़ करूं. तो आगे जाके हम लोग कभी देख लेंगे कि डॉट कन्वेंशन क्या होता है. तो ये मैंने कहा A B इनपुट्स आ रही हैं, यहाँ पे वो सम था और ये कैरी था. ये जो सम है इसको मैंने नाम दिया हुआ था SIHA1. यहाँ पे मैंने SIHA1 लिख दिया. ये जो कैरी था इसको मैंने नाम दिया हुआ था Cout HA1. हाफ एडर 1 का कैरी आउट है. सिमिलरली ये जो हाफ एडर है इससे मेरे पास जो इसका इनपुट ये है और ये जो इनपुट, ये दोनों इनपुट्स हैं, ये एक मेरे पास आ रहा है सम हाफ एडर 1 से SIHA1, वो दूसरी इनपुट आ रही है C इन की. SIHA1 दूसरी इनपुट C की आ रही है. आउटपुट एक मेरे पास S बन रहा है और दूसरी आउटपुट मेरे पास आ रही है C आउट आ रहा है. ठीक है. एक और आउटपुट को उसने लिख दिया C आउट आउटपुट है. तो ये बेसिकली एक्चुअली ये जो है ये C आउट नहीं है, ये एक्चुअली C आउट HA2 आ रहा है. दिस इज अ मिस्टेक हियर. C आउट ये HA2 होगा. So this is C out HA2. Then ये जो C out प्रोड्यूस हो रहा है ये बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है C out जो HA2 से आ रहा है और C out जो HA1 से आ रहा है, उन दोनों का और लिया है. तो दिस इज द C out. C out is the actual output of your full adder module. तो आपका जो आउटपुट आ रही है दिस इज द OR गेट. ये गेट लेवल इंस्टेंशिएशन की हुई, ऑल्दो यू कैन यूज एंड गेट का सिंबल यूज करके आप असाइन लिख सकते थे. आप ये भी लिख सकते थे असाइन sin C out is equal to C out HA1 प्लस C out HA2. इन दोनों को आप सम भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. उसमें कोई मसला नहीं है. या आप ये यूज़ कर सकते हो, ये गेट लेवल इंस्टेंशिएशन है. दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द इनपुट. C out HA1 and C out HA2. So this is one implementation of full adder using instantiation of the half adder. There's another way of implementing a full adder which is using a data flow modeling. और data flow modeling के अंदर हम लोगों ने वही define कर दिया. And then this is a single statement solution. Assign C out SI, AI, BI and C in. इन तीनों को आपने add कर दिया. This is the operator which is called concatenation operator. So this is how you can actually write a code of full adder. Okay, so this is what it is. We already talked about this thing. Now let's talk about ripple carry adder. Ripple carry adder क्या है? अगर if let's say मैंने अगर add करना है दो let's say 4 बिट के दो नंबर है. Let's say मैं इस एग्जांपल को देखता हूँ कि मेरे पास दो 4 बिट के नंबर है, मैंने इन दोनों को ऐड करना है. 1 plus 1 is 0, carry 1. 1 plus 0 is 1, carry 0. 0 plus 1 is 1 and carry 0. 0 plus 1 is carry 1, sum 1 and carry 0. So अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अगर मुझे अगर मैं इस तरह के एडर को देखूं, लेट से मैंने दो 4 बिट के नंबर को ऐड करना है और मैंने अगर इस मेथडोलॉजी को देखूं तो मुझे ये साफ पता चल रहा है कि मुझे पहली जो 2 बिट्स हैं इनको ऐड करने के लिए
मुझे एक हाफ एडर चाहिए। आई कैन यूज़ फुल एडर अगर मैं चाहूँ, लेकिन मुझे हाफ एडर से भी काम चल सकता है। अगली बिट्स को ऐड करने के लिए मुझे फुल एडर चाहिए। इस अगली बिट को ऐड करने के लिए मुझे फिर फुल एडर चाहिए। इस अगली बिट को ऐड करने के लिए मुझे फिर फुल एडर चाहिए, बिकॉज ये जो एडर है ये 3 बिट नंबर को ऐड कर रहे हैं, 3 बिट नंबर्स, ठीक है, एंड प्रोड्यूस सम एंड अ कैरी। सो अगर मैं इस तरह के एडर को देखूं तो ये मेरे पास एक इम्प्लीमेंटेशन दिखाई गई है, रिपल, इसको हम लोग कहते हैं कि रिपल कैरी एडर। कैरी मेरे पास प्रोपोगेट रिपल खा के जा रहा है, कैरी यहाँ से इधर आगे जा रहा है, फिर कैरी यहाँ से आगे जा रहा है, फिर यहाँ से आगे। ये एडिशन तब तक परफॉर्म नहीं हो सकती जब तक ये कैरी नहीं आएगा। ये एडिशन तब तक परफॉर्म नहीं हो सकती जब तक ये कैरी नहीं आएगा। सही है। सो इस तरह के एडर को हम लोग कह रहे हैं कि ये रिपल कैरी एडर है। कैरी हर एडर में से रिपल खा के होके आगे जा रहा है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन दिखाई गई है, दिस इज 6 बिट ट्रिपल कैरी एडर। इट्स माई डिसीजन कि मैं इनपुट जो है इसको मैं फुल एडर भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं सीन निकाल दूँ। सो इफ़ आई एम यूजिंग अ फुल एडर एट द इनपुट एंड फुल एडर ऑल द फुल एडर, तो मेरे पास ये फुल एडर आ रहा है, इसका ये सम आ रहा है और ये कैरी जा रहा है। कैरी जो जा रहा है वो अगले फुल एडर की इनपुट बन रहा है, देन फिर ये सम आ रहा है और ये कैरी जा रहा है। And this is the overflow logic of that, and which is equal to carry input to the carry into the MSB and carry out of the MSB. If they both are different, then there is an overflow. ठीक है, if they are same, तो there is no overflow. तो ये एक लॉजिक होती है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा इस पूरे की। लेकिन अगर आप इसका वेरिलॉग कोड लिखना चाहें तो इसका वेरिलॉग कोड भी बड़ा सिंपल है। यू कैन ईजिली राइट इट्स वेरिलॉग कोड। सो अगर मैं इस एडर की इम्प्लीमेंटेशन देखूं, तो इस एडर की डेटा फ्लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन देखूं तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूं। अगर मैं इस एडर को देखूं और इस एडर में मैं इसका नाम चेंज कर दूं, आल्दो मैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं इसको 6 बिट एडर कह सकता हूं इसको यहाँ पे। और इनकी जो साइजेज़ हैं वो मैं इसके साइजेज़ डिफाइन कर देता हूँ कि मेरे पास जो इनपुट ए है उसका जो साइज़ है वो मेरे पास, अगर मेरे पास 5:0 :0 ये मेरे पास साइज़ ऑफ द इनपुट है, ए आई बी आई। सीन 1 बिट का ही है। जो सम है, अगर मेरे पास सम है, मैं इसको साइज़ अलग डिफाइन कर रहा हूँ और सी आउट को मैं अलग कर रहा हूँ। सम का जो साइज़ है वो मेरे पास अगेन वही है 5:0। अगर मैं 5:0 डिफाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये 6 बिट एडर बन रहा होगा, और सी आउट को मैं सिंगल बिट का डिफाइन कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इसको मैं इस लाइन में नहीं लिख सकूँगा, इसको मुझे आउटपुट में अलग डिफाइन, एंड देन आई एम गोना राइट दिस एग्जैक्टली द सेम स्टेटमेंट। तो ये मेरे पास एक 6 बिट फुल एडर बन जाएगा। ये ऑटोमेटिकली इन 6 बिट्स को, इसकी 6 बिट को, इसकी 6 बिट को, सीन को अब इसमें ऐड करेगा, सम 6 बिट इधर आ जाएगा और जो कैरी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द फुल एडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट, सॉरी 6 बिट ट्रिपल कैरी एडर। तो वैसे हो जाएगा। देयर इज़ अनदर वे ऑफ लुकिंग द सेम थिंग, लेकिन ये सीक्वेंस बनाया गया है। जनरली आपको अगर एडर आपको क्लॉक एज के ऊपर चाहिए तो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क। तो ये बेसिकली दिखाया गया है कि मेरे पास, अगर मेरे पास क्लॉक एज के ऊपर नहीं चाहिए तो ये मेरे पास सिंपल इम्प्लीमेंटेशन दिखाई गई है, जिससे मेरे पास सी आउट है, सम है, ए रजिस्टर वर्जन है, बी रजिस्टर वर्जन है और ये सी इन रजिस्टर वर्जन है। तो वहाँ से मेरे पास ये आ रहा है। ये इसको दिखाया गया कि जिस तरीके से क्लॉक कंप्यूट आपकी ऑलवेज क्लॉक्स आप कंप्यूट करें। जनरली हम लोग इसको सीक्वेंस नहीं देख रहे थे, तो हम लोग इसको इससे मैं मूव करके आगे जा रहा हूँ। अगर मैं रिपल कैरी एडर में देखूँ तो इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। डू वी हैव टू वेट फॉर द कैरी टू शो अप एंड बिगिन यूजफुल ऑपरेशन। हम लोगों ने रिपल कैरी एडर में कहा था कि मेरे पास जो 3rd बिट की एडिशन है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक मेरे पास 2nd बिट का जो कैरी आउट है वो ना आया हो, बिकॉज 2nd बिट का जो कैरी आउट है जो वो यूज़ हो रहा है 3rd बिट के एडिशन के अंदर एज अ कैरी इन। सो डू वी हैव टू नो द कैरी टू गेट द राइट आंसर? यस, बट इट कैन टेक, मुझे पता है कि कैरी की, यस मुझे कैरी का आंसर चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि कैरी का आंसर क्या होगा। कैरी का आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा। क्या इसके अलावा कोई और कैरी का आंसर हो सकता है? नहीं। इसका मतलब या तो कैरी 0 ही होगा या कैरी 1 होगा। तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ कि अगर मुझे इंस्टेड ऑफ मुझे वेट ना करना पड़े या वेट कम करना पड़े, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं अगली बिट की एडिशन परफॉर्म कर लूँ विद कैरी 1 एंड कैरी 0, और उसको मैं डिसाइड कर लूँ बाद में फर्दर यूज़ करते हुए। सो हम लोग क्या करते हैं, कैरी सेलेक्ट एडर selects the adder basic principle, carry select adder basic principle, compute both the possible values of values and the select correct result when we know the answer। हम लोगों का एडर है उसको के ग्रुप में पार्टीशन कर दिया, 2 वैल्यूज ऑफ द सम विद सी इन
is 1 and scene 0 are pre-computed. हम लोगों ने के ग्रुप में एक एडर था मेरे पास, लेट से मेरे पास 12 बिट्स थे, ठीक है, तो मैंने उन 12 बिट्स को लेट से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सॉरी। सो दिस इज़ अ 12 बिट एडर, मेरे पास ये 4 बिट्स आ गई मेरे पास, इधर भी 4 बिट्स आ गई, और मेरे पास यहाँ पे भी 4 बिट्स आ गए। What I am doing here is मैंने इन 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास इसकी भी एडिशन मैंने इसकी परफॉर्म कर दी विद दिस अजम्पशन कि मेरे पास अगर कैरी सी की वैल्यू अगर इसकी इनपुट में कैरी 0 होगा या कैरी 1 होगा, तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैंने एक एडिशन परफॉर्म की, इधर मेरे पास आ गया कैरी 0 के हिसाब से, इधर कैरी 1 के हिसाब से। सिमिलरली इसकी भी एडिशन परफॉर्म की विद कैरी 0 एंड कैरी 1, इसकी भी एडिशन परफॉर्म की विद कैरी 0 एंड कैरी 1। तो अब मुझे ये परफॉर्म खाली करना है, जब भी मेरे पास इस बिट पोजीशन से जब कैरी आएगा, यानी कि इस ब्लॉक से जब कैरी आउटपुट आएगा, तो वो खाली ये सिलेक्ट करेगा, या तो मेरे पास आउटपुट रिजल्ट फॉर कैरी इक्वल टू 0 सेलेक्ट होगा या कैरी इक्वल टू 1 सेलेक्ट होगा, या ये रिजल्ट सेलेक्ट होगा या ये रिजल्ट सेलेक्ट होगा। सिमिलरली या तो ये रिजल्ट सेलेक्ट होगा या ये रिजल्ट सेलेक्ट होगा। जब इसका आंसर आ जाएगा तो ये आंसर फर्दर सेलेक्ट करेगा कि इसका ये रिजल्ट सही है या ये रिजल्ट सही है। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से आपने क्या काम परफॉर्म किया, आपने खाली एक मल्टीप्लेक्सर का एक डिले ऐड कर दिया। ये मेरे पास अगर मैं इसका ओवरऑल डिले कंप्यूट करूँ तो मेरे पास 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर का डिले आ रहा है, 4 बिट एडर का डिले आ रहा है, प्लस मक्स डिले 2 to 1 मक्स प्लस मक्स डिले, ठीक है। तो ओवरऑल जो डिले लग रहा है वो इतना लग रहा है इन ऑर्डर डिले टू परफॉर्म एन एडिशन ऑफ 8 बिट टू 8 बिट नंबर्स। एक 4 बिट नंबर का 4 बिट एडर का डिले आ रहा है, प्लस 2 मल्टीप्लेक्सर डिलेज आ रहे हैं, 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर डिले आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो कैरी सेलेक्ट एडर है ये ओवरऑल डिले को डिक्रीज कर रहा है। सो ये दिखाया गया कि मेरे पास ये आपने एडिशन परफॉर्म की है और आपके पास ये मेरे पास आ गया सम और ये कैरी, फॉर सम इज इक्वल टू 0, फॉर कैरी इज इक्वल टू 1 एंड फॉर कैरी इज इक्वल टू 0। और फिर आपका जो प्रीवियस कैरी इन बिट पोजीशन से आया था उसने सेलेक्ट किया या तो ये सम होगा या ये सम होगा, और ये फिर अगली बिट पोजीशंस को, अगले ग्रुप ऑफ एडर को सेलेक्ट कर रहा है कि मेरे पास या तो ये सम सेलेक्ट होगा या ये सम सेलेक्ट होगा, डिपेंड करता है कि मेरे पास प्रीवियस बिट पोजीशन से कैरी क्या आया एंड सो ऑन। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैरी सेलेक्ट एडर। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मेरे पास ओवरऑल जो नंबर ऑफ डिले है वो ओवरऑल जो डिले है वो कम हो रहा है, ठीक है, बट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। मुझे मोर हार्डवेयर रिसोर्सेज ऐड करने पड़े हैं, एरिया इंक्रीज हो रहा है, बट इट इज़ बिकमिंग अ फास्ट एडर। सो कैरी सेलेक्ट एडर को हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं, यूनिफॉर्म ग्रुप कैरी सेलेक्ट एडर है, एक नॉन यूनिफॉर्म ग्रुप कैरी सेलेक्ट एडर। अब इन दोनों को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, ये बेसिकली बना हुआ है यूनिफॉर्म ग्रुप कैरी सेलेक्ट एडर कि मेरे पास लेट से 2 12 बिट के नंबर थे, उनको मुझे ऐड करना था। मैंने उन 12 बिट के नंबर को 4 बिट के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। दिस इज़ 4 बिट ग्रुप, दिस इज़ 4 बिट ग्रुप एंड दिस इज़ 4 बिट ग्रुप। ये जो 4 बिट ग्रुप है इसको मैंने 2 एडर यूज़ किए, एक कैरी इन इक्वल टू 0 के साथ, एक कैरी इन इक्वल टू 1 के साथ। जब कैरी इन इक्वल टू 0 के साथ यूज़ किया तो इसका सम और कैरी आ गया, कैरी इन इक्वल टू 1 के साथ यूज़ किया तो सम और कैरी आ गया। ये जो सम है ये 4 बिट का सम और ये कैरी 1 बिट का है, ये सम 4 बिट का है, ये कैरी 1 बिट का है। सिमिलरली ये जो एडर है ये भी बेसिकली सी इन इक्वल टू 0 के लिए ये एडर लगा हुआ है, सी इन इक्वल टू 1 के लिए ये एडर लगा हुआ है, सी इन इक्वल टू 0 के लिए ये एडर लगा हुआ है, लास्ट 4 बिट्स के लिए सी इन इक्वल टू 1 के लिए ये एडर लगा हुआ है, और ये सम और कैरी प्रोड्यूस करें। नाउ आई एम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर टू एक्चुअली सेलेक्ट कि मेरे पास इन दोनों में से कौन सा सम एक्चुअल सम है। डिपेंड करेगा कि मेरे पास कैरी इन क्या है। अगर कैरी इन इक्वल टू 0 आया तो मेरे पास ये वाला सम होगा, कैरी इन इक्वल टू 1 आया तो ये वाला सम होगा। तो ये मेरे पास 4 बिट 2 to 1 मक्स लगा हुआ है, ये 4 बिट का नंबर है, ये 4 बिट का नंबर है, और ये मेरे पास 2 to 1 मक्स है जो कि सिलेक्ट कर रहा है। दिस इज़ माई सम। सिमिलरली ये जो मल्टीप्लेक्सर है इसका भी यही सिलेक्ट कर रहा है और ये आगे डिफाइन कर रहा है इस कैरी को। अब नाउ ये जो कैरी है ये आगे जा रहा है, ये अगले बिट पोजीशन को सिलेक्ट कर रहा है कि मेरे पास अगली बिट पोजीशन का जो कैरी है वो एक्चुअल कैरी क्या है।
नाउ अगर मैं और फिर ये जो है ये अगली बिट पोजीशन का एक्चुअल कैरी डिसाइड करे कि एक्चुअल कैरी क्या है, और बेस्ड अपॉन दैट इट इज सेलेक्टिंग either the output of adder which is adding two numbers with input carry 0 or input carry equal to 1. ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है. ओवरऑल अगर मैं डिले देखूं तो मेरे पास, अगर मैं ऐसा काम नहीं करता तो मेरे पास ओवरऑल जो डिले लगना था वो मेरे पास 12 बिट ट्रिपल कैरी एडर का डिले लग रहा था. ठीक है, नाउ इस केस में मेरे पास 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर प्लस 2 to 1 mux प्लस 2 to 1 mux. ठीक है, प्लस 2 to 1 mux. मेरे पास इतना डिले लगा है to produced all the outputs and a carry of this using a uniform group. अब यूनिफॉर्म ग्रुप में क्या किया हम लोगों ने, इक्वली डिवाइड कर दिया. जबकि मुझे ये पता है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये मैं भी कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास, मुझे ये पता है कि 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर ज़्यादा टाइम लेता है 3 बिट ट्रिपल कैरी एडर से. ठीक है, व्हाट इफ़ आई कैन डू इज़, मेरे पास अगर ये मेरे पास इसको डिवाइड करता हूँ, ये मेरे पास 3 बिट है, ये 4 बिट है और ये 5 बिट है. अब मैंने क्या किया, मैंने इनको ना एडर को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ओवरऑल ये 12 बिट ट्रिपल कैरी एडर ही है, लेकिन मुझे ये पता था कि प्रीवियस केस के अंदर ये कैरी और ये सम, इन सब के सेम टाइम के ऊपर अपीयर हो रहे होंगे. ये बात सही है, बिकॉज इन सब का ये सारे 4 बिट, ये जो सारे सम और कैरी थे ये सेम टाइम के ऊपर अपीयर हो रहे होंगे. इस सम और कैरी को कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, ये जैसी कैरी आया है ये सिलेक्ट कर लेगा. इस सम और कैरी को आने के बाद एक मल्टीप्लेक्सर का मज़ीद वेट करना पड़ेगा ताकि ये सिलेक्ट कर सके. इसको आने के बाद मज़ीद 2 मल्टीप्लेक्सर के फर्दर डिले का वेट करना पड़ेगा ताकि वो सिलेक्ट हो सके. ये बात सही है. अगर मैं इसको मज़ीद फास्ट करना चाहता हूँ और मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म ग्रुप अगर रिपल कैरी सिलेक्ट एडर यूज़ कर लूँ, तो मैंने क्या काम किया, मैंने जब ये मेरे पास रिपल कैरी एडर था आया मेरे पास, इसको 3 बिट यूज़ किया. मुझे पता है कि 3 बिट सम का एडर मेरे पास 4 बिट से पहले आ जाएगा. सिमिलरली 4 बिट का सम का आंसर 5 बिट से पहले आ जाएगा. तो नाउ मेरे पास जब ये आंसर आया है तो आंसर आने के बाद वो 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर से पास होगा और ये कैरी आ जाएगा. देन दिस टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम एज दिस टाइम. जो 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का डिले है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 बिट एडर प्लस 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो मेरे पास ओवरऑल जब ये सम आया उसी वक्त ये कैरी आ जाएगा. सिमिलरली जब ये सम आए हैं 5 बिट का तो मेरे पास ये इसका कैरी भी अपीयर हो जाएगा. और इसमें मैं अजम्पशन ये कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली तकरीबन करीब होंगे, उससे बेहतर टाइम आएगा अपीयर होगा जो कि यूनिफॉर्म ग्रुप में था. और इसमें जो टाइम डिले को मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ ये हूँ कि 3 बिट ट्रिपल कैरी एडर प्लस 1 मल्टीप्लेक्सर का डिले प्लस 2 मल्टीप्लेक्सर का डिले इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 5 बिट ट्रिपल कैरी एडर का डिले. सो नॉन यूनिफॉर्म ग्रुप्स और यूनिफॉर्म ग्रुप कैरी सेलेक्ट एडर ही हैं और कैरी सेलेक्ट एडर ऐसे काम कर रहा है. सो इट इज़ एक्चुअली दी फास्टर दैन रिपल कैरी एडर. सो अगर उसी एग्जांपल उसी को देखा जाए और फर्दर एक्सटेंड किया जाए तो नॉन यूनिफॉर्म ग्रुप रिपल कैरी एडर 3 बिट 4 बिट एंड 5 बिट, और आपने प्रोड्यूस कर दिया सम फॉर सी इन इक्वल टू 0 एंड सम फॉर सी इन इक्वल टू 1. तो और फिर आपने सेलेक्ट किया आगे की वैल्यूज़ को और आप आगे करते गए हैं. ठीक है, सो ये मेरे पास ये जो वैल्यू है ये इधर आ गई है, ये वैल्यू इधर आ गई है, सम की यहाँ से सम और कैरी आया, सम और कैरी आया, फिर आप आगे वैल्यूज़ लेके हैं और आगे आपने दिखा दिया. सो इसको आप फर्दर अगर देखा जाए तो इसको आप फर्दर भी देख सकते हैं और इसको 2 लेवल सिंगल लेवल हम लोगों ने देखा था, इसको मल्टी लेवल हायरार्किकल फॉर्म में भी दे सकते हैं. और दिस इज़ दी हायरार्किकल कैरी सेलेक्ट एडर. अगर मैं इसको देखूं और ये इसको इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इसको अगर मैं ऐसे देखूं तो ये ज़रा इफेक्टिव फिगर है. वो ये कहिए कि मेरे पास ये लेट्स से 16 बिट ट्रिपल कैरी एडर है. ठीक है, ये जो ब्लू वाला जो एडर्स हैं ये बेसिकली फॉर कैरी इन इक्वल टू 0 है इसमें, और जो ब्लू नहीं है जो खाली हैं ये बेसिकली 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर हैं, जो 4 बिट एडर हैं जो कि जिसमें कैरी इन इक्वल टू 1 लिया गया. जो इनिशियली यूज़ कर रहा हूँ मुझे पता है कि कैरी इन क्या होगा, तो आई डोंट नीड टू यूज़ के 2 एडर्स और जो कैरी इन 1 और कैरी इन 2 के लिए.
इसका कैरी इन आया, इसने प्रोड्यूस सम कर दिया। इस टाइम के ऊपर जब ये कैरी इन आया था, इसने प्रोड्यूस सम और कैरी कर दिया। ये प्रोड्यूस हो गया, सम और कैरी आ गया, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू आ रही थी, ये वैल्यू तब तक सेलेक्ट नहीं होंगी जब तक ये प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये कब प्रोड्यूस होगा? सो इनिशियली अगर मैं देखूँ तो इनिशियली जब ये आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, दिस आउटपुट, तो इस वक्त बेसिकली ये आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, ये आउटपुट भी प्रोड्यूस हुई है, ये आउटपुट भी प्रोड्यूस हुई है, और ये आउटपुट्स भी प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी ये आउटपुट अभी एट टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर जब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट की थी तब ये आउटपुट नहीं थी। जैसे ये आउटपुट आई है, ठीक है, जैसे ये आउटपुट्स आई हैं तो मेरे पास आफ्टर फुल एडर डिले एक ये जो चेंज कलर हुए ये आउटपुट आई हैं। ऑब्वियसली सम के साथ मैं कैरी को मोर फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मेरे पास ये आउटपुट्स आए हैं। देन इन आउटपुट्स ने आगे जो फर्दर रिपल कैरी एडर, आगे जो कैरी सेलेक्ट एडर्स लगे हुए हैं उसमें से सिलेक्ट किया कि मेरे पास कैरी इन इक्वल टू 0 वाला सेलेक्ट होगा या कैरी इन इक्वल टू 1 वाला सेलेक्ट होगा। सो इसका मतलब है कि अगर कैरी इन इक्वल टू 0 वाला सेलेक्ट हुआ तो इसने इन दोनों में से सेलेक्ट कर दिया, और कैरी इन इक्वल टू 1 वाला सेलेक्ट हुआ, इसने फर्दर इन दोनों में से, ये ब्लैक जो है वो कैरी इन इक्वल टू 1 वाला है और ये जो है ये कैरी इन इक्वल टू 0 वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो अब ये जो आउटपुट आ रही थी, ये अब जो आउटपुट आई है ये 8 बिट की आउटपुट आ गई जिसको उसने फर्दर सेलेक्ट कर लिया। ये 4 बिट यहाँ से आ रहे हैं और 4 बिट यहाँ से आ रहे हैं। सिमिलरली ये कैरी इन इक्वल टू 0 के साथ है और ये फर्दर कैरी इन इक्वल टू 1 के साथ है, ठीक है। तो मेरे बेसिकली अब आपने ये हायरार्किकल फॉर्म में यूज़ किया। एट वन टाइम ये जब आउटपुट आई है इसने इस अगले एडर को सिलेक्ट कर लिया है, इस आउटपुट ने इस अगले एडर को सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो आउटपुट है इसकी आउटपुट का वेट करेंगे। जब ये आउटपुट अगर 0 आएगी तो बेसिकली ये आउटपुट फर्दर ये जो आउटपुट है ये आगे आउटपुट में आ जाएगी। अगर ये आउटपुट 1 आएगी तो ये आउटपुट आगे आ जाएगी। सो ये जो बेसिकली अगर मैं इसको देखूँ तो ये 2 हायरार्की हैं, ये एक फर्स्ट लेवल है एंड ये सेकंड लेवल है। सो इट्स अ हायरार्किकल कैरी सेलेक्ट एडर जो कि आपके पास 16 बिट नंबर की एडिशन परफॉर्म कर रहा है। सो नाउ आफ्टर दिस टाइम ये आउटपुट आई है, इसमें यहाँ पे सेलेक्ट हुआ और एंड ये आउटपुट यहाँ से आई है, इन दोनों की आउटपुट सेलेक्ट हो गई है और इसने फर्दर डिसीजन लिया है और इसने आउटपुट ये 9 बिट की आउटपुट आपने प्रोड्यूस कर दिया।